Good morning, everyone. Good morning. I am Nancy Loan on behalf of Millet Al Falah Trust Kishtwar. Welcome you to this wonderful institution with Al Falah Manzil Kishtwar Bandula. Thank you so much. Welcome, sir. थैंक यू सबसे पहले तो आप सभी को मुबारकबाद देना चाहूंगा दैट यू हैव गॉन इनटू अ पॉजिटिव वे ऑफ लाइफ। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अन अकेडमी और बायजूस के जो बेस्ट वर्ल्ड क्लास टीचर्स हैं उनको हम लोग ऑडिटोरियम में तैयार कर रहे हैं डिग्री कॉलेज में। तो वहाँ पे वो डायरेक्ट 1-to-1 करेंगे, महीने में एक बार मिलने भी आएंगे, इनके ऑफलाइन टेस्ट हुआ करेंगे, ठीक, और लाइव टीचिंग में ये अपने क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, इंटरेक्शन कर सकते हैं। तो मुझे लगता है जितने भी अपने ब्रिलियंट माइंड्स हैं, नॉट जस्ट यहाँ पे बट पूरे किश्तवाड़ में, वी हैव टू इंश्योर दैट दे डोंट नीड टू गो एनीवेयर। जितना मैंने देखा है यहाँ पे चिल्ड्रन आर इन गुड हेल्थ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलना, और फिर तुम्हें बरादरी और कौमों में तकसीम कर दिया ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वंडरफुल इवेंट। Chief guest who is none other than worthy district development commissioner Kishtwar. Text of Surah Al-Alaq. Good morning, everyone. My name is Muhammad Akimir. I am a student of class 8 from Government High School, Bandina. بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया है, जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। Sight and your Lord is most generous, who taught by the pen, taught man that which he knew not. जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। हे अल्लाह हर बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको। More good wishes to all of you. I am Nan Parvez, student of Millet Academy of 12th standard of Government Model Higher Secondary Boys Kishtwar, and I am preparing for NEET examination. I am immensely honored and privileged to be a part of this today's program and take this opportunity to thank the King of Kings, Almighty Allah. And despite, I would like to thank my institution and my lovely teachers for giving me a chance to perform here. Before I start this program, and particularly this panel discussion, so I would request all the panelists to introduce themselves one by one. Hello everybody. I Sahil Mushtaq from Sunnah Palmar Kishtwar, and presently I am residing in Al Falah Manzil Kishtwar. I am pursuing my graduate degree from Government Degree College Kishtwar, and I am also a hostel secretary in this institution. To all of you, I Azim Shafi, student of Arts Faculty of 12th Standard from Government Model Higher Secondary School Boys Kishtwar. I am from Palmar and presently residing in Al Falah Manzil Kishtwar since 2015. Yadanand from Sripura Chhatu and presently residing in Al Falah Manzil Kishtwar, Bandina. I have recently passed my 10+2 examination with good score, and I am preparing to get myself admitted in any central university for my bachelor's degree. I am Shyam Chhaj. I am student of 11th class from Government Model Boys High School, Kishtwar. Platform, I would like to congratulate Mr. Mubashir Ahmed
on getting selected for male multi-purpose worker course at New Modern Institute of Paramedical and Nursing Sciences. So now moving towards discussion, I would like to ask Mr. Mubashir Ahmed, what do you mean by drugs? Into the body has a physiological effect. Physiological effect. So Mr. Imtiaz Ahmed, can you explain precisely what do you mean by physiological effect? Sahil Mushtaq, do you feel that these drugs have any negative effects on the consumer? Yes, why not? It's an obvious fact that these drugs have a negative effect on the consumers. Not only the consumers, but nowadays these drugs are showing its adverse effect at the societal levels too. How we can control this dangerous social evil and also suggest some ways to get rid of this menace from our society, particularly our children. Let me tell you that the evil of drug addiction may be controlled at the first level by the parents. There is an important role of parents. Parents are the first guardian of a child. The duty of the parents is to have a keen vigil on their children. Secondly, the role gets shifted toward school, where being a student, a child spends almost 1/4 time of the day. The teacher have a good role in the school. Finally, at last, I feel that is the role of the administration to provide such platform to the youth that themselves get engaged in the positive activities. Even Hans shared some other suggestions regarding this particular topic that we are discussing. The menace of drug addiction is a common problem of the society. It is such a dangerous threat to the society that it will not bother the people it is affecting belongs to which community. The affecting person is a Hindu, a Christian, a Muslim or a Jain. The drug will not see that. My suggestion is that why not the religious heads of different communities join hands and share a common platform to fight against this social evil. Before I invite today's chief guest, I would like to call Chairman Minadam Partners Kishwar, Dr. Muhammad Iqbal Maliki, to precisely present introduction and achievement of Al-Falah Manzil Kishwar. The institution was inaugurated in July 2015. That time we had only 7 students, 2 teachers and 1 squad. Present student size is near about 50, wherein 32 are the orphans. Institution is run by Millat Al-Falah Trust by the name of Al-Falah Manzil Kishwar. The institution is run by public donation, carried by Mission Director ICPS, Registrar of OJ, in share of zakat from the society, and the same has been used so far for the construction work. इतनी बड़ी शख्सियत का इदारे में आना मेरे लिए एक नज़दीक सी बात है। आज तक हमने इनका रिस्पॉन्स मैंने इतना अच्छा देखा, हमने ऐसे इशारतन कहा था, ऐसे इशारतन में मैंने कहा था आप जरा तशरीफ लाइए, वहाँ कुछ प्रॉब्लम थी और इन्होंने इसको मैच्योर किया। आज हमारे पास आए, बच्चों के साथ बैठे, हमारे साथ मिल बैठे, तो इसके लिए मैं इनका बड़ा मशहूर हूँ। मैं अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे पास अगर मैं किसी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन क्वेश्चन आपने अपनी जो पढ़ाई आपकी है उसमें आपने पहले नीट क्वालिफाई किया, उसके बाद MBBS भी किया, तो उसके बाद आपने IAS किया, असम के आपने IAS किया। क्या आपने आपकी माइंड में पहले से था कि मैं पहले IAS करूँ या नीट करूँगा और उसके बाद IAS करूँगा? इसका सिंपल लफ्जों में बताऊं तो एक तो साइंस की तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट था, क्योंकि जब आप किसी स्ट्रीम को चूज करते हो क्लास 10 के बाद, तो उस समय आप देखते हो आप किस सब्जेक्ट में अच्छे हो। तो नॉर्मली मैं साइंस में अच्छा था, तो 2 ऑप्शन थे, या तो इंजीनियरिंग में जाना था या मेडिकल में। बिकॉज तो कॉमर्स और आर्ट्स में उस तरीके का इंटरेस्ट नहीं था, और तो हिस्ट्री मुझे अभी भी बहुत अच्छी लगती है। तो उस टाइम जब मैंने क्लास 11 ज्वाइन करी तो मैंने बायोलॉजी ली, तो ऑटोमेटिकली रास्ता क्लियर था कि भाई मेडिकल ही करना है।
तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के सब्जेक्ट्स लेके फिर उसके बाद क्लास 12 के बाद तैयारी करके, हमारे टाइम पे उसको नीट नहीं बोलते थे, पीएमटी बोलते थे, प्री मेडिकल टेस्ट, AIPMT होता था। एम्स का अपना अलग एग्जाम होता था, अभी भी अलग है, एम्स का एग्जाम अभी भी अलग है। तो उस सारे एग्जाम्स को दिए। फिर उसके बाद जब आप कॉलेज में चले जाते हो ना, तो एक चीज आप ये देखेंगे कि एज ए मेडिकल प्रोफेशन उसमें डाइवर्सिटी बहुत है। अभी समय के साथ क्या हो गया है कि चीजों में स्पेशलाइजेशन आ गया है कि अगर कोई आंख का डॉक्टर है ना, तो आंख का डॉक्टर भी आगे पढ़ते पढ़ते आंख के बाद आंख के अंदर का एक पार्ट यानी कि रेटिना, उसका स्पेशलिस्ट हो जाता है। उसी तरह अगर कोई मेडिसिन का डॉक्टर है, तो मेडिसिन का डॉक्टर भी ना फिर पेट का स्पेशलिस्ट हो जाता है, और पेट के स्पेशलिस्ट में भी सुपर स्पेशलाइजेशन पैनक्रियाज या लिवर में करता है। तो बहुत ज्यादा स्पेशलाइजेशन हो रहा था, जबकि मेरा जो चॉइस था, मैं चाहता था कि मैं थोड़ा जेनेरिक रहूं, बिकॉज ज्यादा से ज्यादा चीजें मेरे को इंटरेस्ट में थी, ना सिर्फ के एक ऑर्गन विशेष पर मैं लिमिट हो जाऊं। तो उसकी वजह से जो सेमेस्टर 5 होता है, सेमेस्टर 5 तक आप एक ट्रांजिशन फेज में होते हो पैरामेडिकल सब्जेक्ट और मेडिकल सब्जेक्ट के। पैरामेडिकल सब्जेक्ट का एग्जांपल है जैसे पैथोलॉजी। तो पैथोलॉजी में आप देखेंगे कि क्या बीमारी है, उसमें टिश्यू में क्या असर हो रहा है, और टिश्यू में असर होने के बाद वो किस तरह से डिजेनरेट हो रहा है या खराब हो रहा है। उसके बाद अगर उसको ठीक करना है तो आप मेडिकल में आ जाते, क्लिनिकल में आ जाते हो, जो कि सेमेस्टर 5 के बाद आता है कि भाई टिश्यू तो खराब हो गया, अब इसको ठीक कैसे करना है। तो जब तक वो सेमेस्टर 5 में था, तब उस टाइम तक मैं काफी इंटरेस्टेड रहा अपने मेडिकल के सब्जेक्ट्स में। बट सेमेस्टर 6 में आते आते जब मैं क्लिनिकल एक्सपोजर में गया, तो मैंने देखा कि स्कोप थोड़ा सा लिमिटेड हो रहा था, वो मेरी चॉइस के हिसाब से थोड़ा डाइवर्सिटी उतनी प्रोवाइड नहीं कर रहा था। तो उसके बाद कुछ सीनियर्स थे, उनका सिविल सर्विस एग्जाम उन्होंने दिया, उन्होंने टॉप भी किया, तो उसकी वजह से एक एडेड मौका मिल गया ये सोचने का, क्योंकि जब आपका कोई सीनियर होता है और वो भी कर लेता है वो चीज, तो आप भी सोचते हैं कि अगर इसने कर दिया तो मैं भी कर सकता हूँ। बिकॉज नॉर्मली मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर किसी का पहले से ही मन है, तो उनको 5.5 साल के MBBS के कोर्स में नहीं जाना चाहिए, रादर 3 साल के ग्रेजुएशन के बाद उनको करना चाहिए। बिकॉज आप जिस उम्र पे सर्विस में एंटर करते हो वो भी बहुत मायने रखता है। अगर आप 30 साल की उम्र पे एंटर करोगे तो आप जितनी भी मेहनत कर लो, आप एक लेवल ऑफ सीनियोरिटी तक जा पाओगे। अगर आप 25 साल की एज में एंटर करोगे तो आप बहुत ज्यादा आगे तक सीनियोरिटी में जा सकते हो। अगर आप 22-23 साल की उम्र में चले जाओगे तो फिर आप एकदम टॉप तक भी जा सकते हो। तो उसकी वजह से ये रहता है कि एक ओपन माइंड के साथ चलना होता है, बिकॉज चीजें आप जैसे प्लान करते हो हमेशा इस तरह से होती नहीं है। और अगर आप ओपन माइंड करके चलेंगे तो अल्टीमेटली आप जो करना चाहेंगे, जिसमें आपको इंटरेस्ट है, आप वही करेंगे। बिकॉज कभी ऐसा हो जाता है कि अब तो मैं इसमें फंस गया, अब मैं निकल भी नहीं पा रहा हूं। बट इफ यू हैव द फ्लेक्सिबिलिटी टू एक्सप्लोर, तो आप लाइफ में वही करियर चुनेंगे जिसमें आपको खुशी मिलती है, और अल्टीमेटली वही मैटर करता है। एंड आप जो भी तालीम लेते हैं, अभी मेडिकल की भी अगर आपने तालीम ली है, तो दैट स्टेज विद यू। आपका जो लाइफ का अप्रोच होता है, उसमें मेडिकल की जो प्रैक्टिस होती है, जो आपको वो चीजें सिखाती है, वो आपके साथ कंटिन्यू रहता है। इवन दो आप एक्टिव डॉक्टर की तरह काम नहीं करते, बट वो नॉलेज आपके साथ काम आती ही रहती है किसी की तरह। ये कहा था कि मैंने पहले मुझे मेडिकल में इंटरेस्ट था, तो मैंने मेडिकल लिया, तो फिर जो स्ट्रीम थी वो अपनी चेंज की। फिर उसके बाद आपको कैसे इंटरेस्ट आया कि आपको अब ये किताबों इनमें से इंटरेस्ट आप में आया कि अब मुझे ये पढ़नी है? एक्चुअली मेरे जो ऑप्शनल सब्जेक्ट थे वो मेडिकल साइंस ही था, तो इवन सिविल सर्विस में वो मेडिकल का फायदा हुआ। और दूसरी बात, जैसा मैंने बोला, मुझे हिस्ट्री में इंटरेस्ट था, तो सिविल सर्विस के काफी सारे टॉपिक्स होते हैं जो बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, तो वो मेरे काम आए, तो मैंने पढ़ी। सिविल सर्विस हमेशा ओपन रहती है, इवन पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी ओपन है, ग्रेजुएशन के बाद तो ओपन है। तो आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे है, अगर आपका सिविल सर्विस में इंटरेस्ट है, आप परस्यू कर सकते हैं। लेकिन दैट इज नॉट द एंड ऑफ थिंग्स, है ना, क्योंकि आज की तारीख में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। अभी मोबाइल टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ जा रही है। 20-30 साल में इंसान ने मार्स पे जाना ही जाना है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है ना। तो ये जो सिविल सर्विस वाली जॉब है, सच बताऊं तो ये
काफी एक पुरानी ट्रेडिशनल जॉब है। जब से सरकार है, पिछले 200 सालों से, जब से नेशन का कॉन्सेप्ट आ गया और जब से सिविल सर्विस आ गई है। लेकिन जो आज के जॉब हैं, जो आपके लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले जॉब्स हैं, उनका एक अपना अलग ही पोटेंशियल है ना। मैं सिविल सर्विस में बैठ के कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं बना सकता जिससे कि पूरी दुनिया बदल जाए। ये जरूर कर सकता हूँ कि उस टेक्नोलॉजी का ऐसे इस्तेमाल करूं कि उससे ज्यादा लोगों को फायदा मिले, है ना। तो एवरीथिंग हैज इट्स ओन चार्म। तो कभी ये नहीं सोचना कि यार मैंने ये नहीं किया तो यार अब मेरी लाइफ बेकार होगी। एवरीथिंग हैज इट्स ओन चार्म। अब जैसे अगर आज हम इधर सेटिस्फैक्शन की बात कर रहे हैं, तो सेटिस्फैक्शन कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम एन नंबर ऑफ थिंग्स। तो यू शुड ऑलवेज हैव दैट डाइवर्सिटी इन योर माइंड कि भाई ये नहीं तो इसके थ्रू मैं सेटिस्फैक्शन डिराइव करूँ। मेरा नाम साहिल मुश्ताक है और मैं परमार से हूँ। सर, मेरी जो जिंदगी के हालात जिंदगी है वो कुछ इस तरीके से गुजरी है कि जो बेस है हमारी स्कूल की वो उस तरीके से नहीं बनी है जिस तरीके से बननी चाहिए। सारे भी वक्त हमारी मदद करते रहते हैं, हमें बताते रहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, लेकिन आप उस रास्ते से गुजर चुके हैं। तो आप हमें बताइए कि आप कैसे पढ़ते थे, मतलब कि नोट्स टीचरों के साथ बनाते थे या उस्तादों से मदद लेते थे या खुद आप सेल्फ स्टडी करते थे, कैसे करते थे ताकि हम भी उस रास्ते चल सकें? देखो, मैं एक बात बताऊंगा, 100 बच्चों के ग्रुप में हमेशा कुछ बच्चे होंगे जो कि पुलिस बनना चाहेंगे और हमेशा कुछ बच्चे होंगे जो कि डाकू बनना चाहेंगे, है ना। वो एक ह्यूमन नेचर है, क्योंकि जो हमारा एक तो अपब्रिंगिंग भी होता है और ऊपर से थोड़ा सा जेनेटिक वो भी होता है कि अलग अलग बच्चों का अलग अलग बेंट ऑफ माइंड बनता जाता है। इसीलिए आप देखेंगे 100 बच्चों में कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा कि 2 बच्चे एकदम सेम है। सबका अपना अपना कुछ कुछ यूनिक है ना। तो अब जैसे इकबाल साहब भी बता रहे थे कि काफी बच्चे जो एजुकेशन सिस्टम में आके, ऑर्फनेज में आके गलत डायरेक्शन में जाने से बच जाते हैं। तो वो ये सोचिए कि कितना एक बड़ा लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट करने वाला काम होता है। मुझे तो लगता है किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से भी ज्यादा बड़ी चीज होती है। तो सबसे पहले तो आप सभी को मुबारकबाद देना चाहूंगा दैट यू हैव गॉन इनटू अ पॉजिटिव वे ऑफ लाइफ, है ना। बिकॉज अगर ग्लास भी है तो देयर आर, उसको देखने के 2 नजरिए हैं, या तो वो आधा भरा हुआ है या फिर वो आधा खाली है। तो आसपास हमारे जो भी होता है उसको देखने के 2 नजरिए हमेशा होंगे, है ना। किसी को वो चीज अच्छी लग रही होगी और किसी को वो चीज खराब लग रही होगी। तो हम कैसे किस चीज में अच्छाई और पॉजिटिविटी ढूंढें, दैट इज अप टू आवर अपब्रिंगिंग, अप टू व्हाट इज टॉट टू अस, है ना। और जहां तक रही तैयारी की बात, तो डेफिनेटली नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मेरे हिसाब से। हिंदू न्यूज़पेपर होता था, उसके मैं नोट्स बनाता था, बिकॉज उसमें जो एडिटोरियल्स और ओपिनियन पेजेस आते थे, खासतौर से इकोनॉमिक्स को लेके, उनके नोट्स बनाता था। किताबों में बहुत ज्यादा हाथ पैर नहीं फैलाने के, एक सब्जेक्ट के लिए 10 किताबें, रादर 1-2 किताबें पढ़नी होती हैं। और उसमें जो आप नोट्स बनाते हैं, तो ऐसा नहीं कि एक टॉपिक के लिए 10 जगह पे नोट्स बना लिए। एक टॉपिक के लिए एक ही जगह पे नोट्स बनाने हैं। जिस दिन आपने कुछ रेलेवेंट पढ़ा है, उस दिन उस पेज पे, उस नोट में उसको ऐड कर देना है। 1 हफ्ते बाद अगर आप कुछ चीज उसी टॉपिक से जुड़ी हुई काम की पढ़ते हो, आपको उसी पेज पे ऐड करनी है, ताकि आपके पास एंड में वो लिखने का मटेरियल तैयार हो जो कि बहुत ही सॉलिड हो, आपके आंसर के सभी डायमेंशंस को कवर कर ले। तो नोट्स को बनाने का तरीका अपने आप में मैं बोलता हूं जिसको आपको देखना चाहिए। अनअकैडमी वगैरह में आजकल यूट्यूब में काफी ट्यूटोरियल्स हैं किस तरह से नोट्स बनाए। थोड़ा सा आप उसको भी गाइडेंस लीजिए। बाकी हम लोग तो अभी एक ग्रुप पे काम कर रहे हैं, जो अभी किश्तवाड़ रीडिंग हब अभी बना है गर्ल्स हायर सेकेंडरी में। तो संडे को हम लोग कोशिश करेंगे कि सिविल सर्विसेज से जो भी एस्पिरेंट्स हैं या बाकी सब्जेक्ट्स के भी एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए कुछ ग्रुप ऑफ 5-7 ऑफिसर्स जो यहाँ पे हैं, मैं हूँ, इमरान है, मुनीब है, हम सब लोग मिलके उनको काउंसलिंग देंगे। उनके जो डाउट सॉल्विंग है, कुछ सिलेबस की चीजें भी समझ में नहीं आती कई बार कि इसका क्या मतलब है, ये क्या है, वो सारा हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप लोग आए, मोस्ट वेलकम। और इसी तरह एक पॉजिटिव बेंट ऑफ माइंड के साथ आगे चलें, डेफिनेटली आप सक्सेस करेंगे।
हमारे दीवान शाह सर को दावत देता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ ले आए। सभी को आदाब, सलाम, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज मुझे इधर बुलाया और इस इंस्टीट्यूट को देखने का मौका मिला। जब भी समय मिलता है हम लोग कोशिश करते हैं कि रेड क्रॉस के थ्रू भी अलग अलग जगह जहाँ पे हमारे बच्चों के हॉस्टल फैसिलिटीज है हम लोग वहाँ पे जाएं, बिकॉज बहुत कुछ होता है जो हम लोग अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आपकी रोजमर्रा की जो चीजें होती हैं, जरूरतें होती हैं, उसको हम लोग रेड क्रॉस की तरफ से प्रोवाइड कर सकते हैं। क्योंकि रेड क्रॉस का मेन मकसद ये है कि जो जरूरत में है, जिसको जो रिक्वायरमेंट है, जेन्युइन रिक्वायरमेंट है, उसको सरकार की तरफ से, उसको पब्लिक डोनेशन की तरफ से, उसको रेड क्रॉस एज ए ट्रस्ट की तरफ से भी फुलफिल किया जाए। तो इमरान भी हमारे साथ काफी प्रोएक्टिवली इसमें काम कर रहे हैं और हम लोग कोशिश करेंगे अपनी तरफ से। आज हमने जितनी भी चीजें देखी है, अपार्ट फ्रॉम जो चीजें हम लोग आज इनके लिए लेके आए हैं, आगे भी अगर जो जो सामान इनको चाहिए, चाहे वो स्टडी टेबल, जो किताबें, वो लाइट्स, बाकी सारी जरूरतें हैं, हम लोग उसको जरूर मुहैया कराएंगे। और इसमें मेरे जितने भी बच्चे हैं आज, जैसे अभी मैं कुछ बच्चों ने सवाल पूछे तो मैंने ज्यादातर चीजें करियर से रिलेटेड तो आपको बताई दी। वो वाली बात मैं फिर से रिटरेट करूंगा, अच्छे और बुरे आपको सब तरह के लोग मिलेंगे, है ना। अभी जो आपका एज पीरियड है, ये जो यंग एज होती है 10 साल से 18 साल या प्रोबेबली 7 साल से 18 साल तक, ये सबसे क्रूशियल एज है। इस समय जो आपको तालीम मिलेगी वो आपके लाइफ के आगे की पूरी जर्नी का डिसाइड करेगी। और मैं इस चीज में फर्म बिलीवर हूं कि अपने रिलीजन, अपने कल्चर की नॉलेज के साथ साथ हमको वेस्टर्न साइंस और टेक्नोलॉजी को सीखना है। और इनका राइट मिक्स अगर हमारे पास हो तो हम एक आइडियल ह्यूमन बीइंग बन सकते हैं। पूरी ह्यूमैनिटी के लिए हम लोग वो चीजें कर सकते हैं जो कि कोई नहीं कर सकते। तो आई थिंक जितना मैंने देखा है, यहाँ पे चिल्ड्रन आर इन गुड हैंड्स। और जिस तरह के उनके मार्क्स आ रहे हैं, जिस तरह के उनके परफॉर्मेंसेज हैं, डेफिनेटली बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रहेगी। और भी जो नए बच्चे आएंगे, जब ये फैसिलिटी बढ़ेगी, उनसे भी बहुत एक्सपेक्टेशंस रहेगी। बिकॉज अगर अप्रोच प्योर हो, अप्रोच पॉजिटिव हो, तो स्काई इज द लिमिट। और मेरी अभी जैसे बात हो रही थी कि हम लोग, हमारा जो किश्तवाड़ रीडिंग हब है, विच इज लोकेटेड इन गर्ल्स हायर सेकेंडरी, every Sunday we are going to sit there for all civil service aspirants. गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में हमारे जितने भी बच्चे हैं, उन सभी बच्चों के लिए हम लोग जो क्लास 12 में है या क्लास 12 पास कर चुके हैं, और ऑल ऑफ देम हम लोग मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए जितनी भी कोचिंग होती है, जो आपको जम्मू दिल्ली जाके करनी पड़ती है, जिसके लिए लोग बच्चे 60-70 हजार रुपए खर्च करते हैं, फिर रहने खाने का अलग है, एक साल का कम से कम नहीं तो 2 लाख का। All of that is coming at your doorstep, is coming to Government Degree College Kishtwar. Don't waste the opportunity, because I am sure यहाँ पे काफी सारे लोग, आप तो इमाम साहब के भी ताल्लुक में रहते हैं, अपने नेटवर्क के थ्रू ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसमें जोड़ना, ताकि हम लोग चाहते हैं कि किश्तवाड़, अभी यहाँ पे हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं, अभी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है। दिस इज द अपॉर्चुनिटी टू ट्रांसफॉर्म किश्तवाड़। हम लोगों को रिमोट डिस्ट्रिक्ट बन के नहीं रहना है, वी हैव टू मूव बियॉन्ड दैट। उसके लिए हमारा ह्यूमन रिसोर्स बहुत सॉलिड होना पड़ेगा। और ह्यूमन रिसोर्स का मतलब होता है जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, जो हमारे पढ़े लिखे लोग होते हैं। तो अभी ये जो ग्रुप हमारा बच्चों का तैयार हो रहा है, अगर इनकी ग्रूमिंग अच्छे से होगी तो डेफिनेटली वी कैन अचीव अ लॉट। अभी टूरिज्म की बात करता हूं तो हमारे पास टूरिज्म में करने को कितना कुछ है, उस तरीके का एक्सपोजर नहीं है कि चीजों को नेक्स्ट लेवल तक ले जाया जाए, जिस तरह शायद कश्मीर में, श्रीनगर में, अनंतनाग में लोग ले जाते हैं। बट डेफिनेटली हम लोग कर सकते हैं, वी हैव द पोटेंशियल, जिस तरह से आप लोगों के मार्क्स से वो दिखता भी है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, बिकॉज आई एम श्योर दैट we'll have another visit very soon, and for whatever it's worth, it's been a very enriching experience. और मैं मुबारकबाद दूंगा and my best wishes to the institute. Thank you for calling me. जय हिंद।
इमरान